begin with the limbic system, often called the emotional brain. The limbic system is the collection of structures deep within the brain that work together to regulate emotions, memory, motivation, behavior, smell, and autonomic functions. तो बेसिकली ये लिम्बिक सिस्टम जो है एक इमोशनल ब्रेन है. जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर वो डीप विद इन द ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं एंड सारे मिलकर रेगुलेट करते हैं आपके इमोशंस, मेमोरी, बिहेवियर, मोटिवेशन, स्मेल और कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शन. इसको हम फेमस एफ से याद रखते हैं. 5 Fs का मतलब है 4 Fs और एक एस, तो ये एस भी इम्पोर्टेंट है. तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग एंड सेक्स. तो ये पांचों फंक्शंस आपके लिम्बिक सिस्टम के होते हैं. ठीक है. वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इज द हिप्पोकैम्पस. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं. तो आप try to visualize this image with this information. So first of all, we have this hippocampus here. Can you see this hippocampus here? So hippocampus जो है, it's named after a seahorse because of its shape. So apparently this looks like a seahorse here, and इसलिए इसको hippocampus कहते हैं. Its primary function is converting short-term memories into long-term memories. Think of it as the brain's memory filing system. ठीक है. और दिस इज डैमेज इन अल्जाइमर्स. ऑल्सो जहाँ पे भी आपको हिप्पोकैम्पस की डैमेज मिलेगी वहाँ पे द पेशेंट गेट्स एंटेरोग्रेड अमनीशिया. एंटेरोग्रेड अमनीशिया का मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसकी ओल्ड मेमोरीज तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन कोई न्यू मेमोरीज जो है वो पेशेंट की नहीं बन रही. ठीक है. Another important thing, another important part or structure we will study is the amygdala. So this is the amygdala and this is basically where the fear, danger or aggression part of the emotion lies. ठीक है. The word amygdala means almond. ये जो है almond से आता है amygdala का word because it looks like a small almond shaped mass. The amygdala helps us recognize fear, danger, anger, and emotionally significant events. If you suddenly hear footsteps behind you in a dark alley and you suddenly feel frightened, basically your amygdala is helping you generate that frightened response. तो अगर कोई अंधेरा है, अंधेरी गली में आपको एक आवाज़ आ रही है फुटस्टेप्स की, आपको डर लगता है, तो ये amygdala का काम है. अगर amygdala डैमेज हो जाए तो हम इसको एक सिंड्रोम होता है जब बायलैटरल दोनों साइड्स पे amygdala का लीजन होता है and we call it the Kluver-Bucy syndrome. And whenever the amygdala is damaged, basically hypersexuality, hyperorality और placidity मिलती है आपको पेशेंट में. तो ये Kluver-Bucy syndrome basically होता क्या है? It's a very rare neurobehavioral syndrome and it occurs when there's bilateral damage to the amygdala और especially ये anterior temporal lobes में damage होता है इस syndrome में. The amygdala normally क्या करता है? It regulates basically the fear, aggression, emotional responses, sexual behavior and recognition of danger. तो जब दोनों साइड से amygdala damage हो जाते हैं तो brain अपना normal filter जो है ना, normal emotional filter उसको lose कर देता है. उसकी वजह से आपको सबसे पहले अगर हाइपर सेक्सुअलिटी मिलती है तो क्या होता है कि देयर इज दिस एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर. देयर इज इंक्रीज्ड सेक्सुअल अर्ज, देयर इज एन टेम्पटिंग सेक्सुअल बिहेवियर विद इनअप्रोप्रिएट पीपल और ऑब्जेक्ट्स and there's also loss of normal social restraints regarding sexuality. What happens basically is that the amygdala normally helps to suppress the inappropriate sexual behaviors. जब इसका damage होता है तो this removes the inhibition. You get hyperorality. So hyperorality is basically a tendency to explore objects by putting them into the mouth. जो आप बच्चों में देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठा के अपने मुंह में डाल देते हैं. ठीक है. लेकिन बड़े ये नहीं करते. तो think of it as an adult behaving like an infant exploring the world through their mouth. तो वो पेन, कीज, पेपर और कोई भी नॉन फूड आइटम अपने मुंह में डाल के उसको या चूसना शुरू कर देंगे या उसको च्यू करना शुरू कर देंगे. क्यों? क्योंकि जो टेम्पोरल लोब है वो आपके ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है. तो ये जब डैमेज होता है तो पेशेंट्स रिलाई करते हैं ऑन द ओरल एक्सप्लोरेशन ऑफ थिंग्स. तो एक चीज़ होती है प्लासिडिटी. प्लासिडिटी इज अनयूजुअल कामनेस एंड लैक ऑफ फेयर. ना डर लग रहा है और ना कोई एग्रेशन शो कर रहा है पेशेंट. दिस नो फेयर ऑफ डेंजरस सिचुएशन. एग्रेशन बहुत कम हो जाता है. You appear emotionally flat or overtly tame. So a person who would normally run from a snake may calmly approach it. This is because the amygdala is the brain's fear center, and damage to it removes any normal fear responses. Other इसमें और features भी होते हैं. Other features include visual agnosia, which is basically psychic blindness.
The person can see the object but that cannot recognize what it is. तो पेन को देखेगा लेकिन उसे समझ नहीं आएगी पेन है क्या, पेन क्या होता है, पेन से दिखते हैं क्या करते हैं, इवन तो नॉर्मल विजन है लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा. हाइपरफेजिया भी होती है, बच्चे एक्सेसिवली ईट करते हैं, इवन अडल्ट्स दे ईट कंटिन्यूअसली, ईट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड हैव पुअर सैटिस्फाइड कंट्रोल. तो यूएसएमएल एसोसिएशन में ये आपको अमिगडाला की रीजन मिलती है विद सीवियर हेड ट्रॉमा, या आपको बायलैटरल टेम्पोरल लोब सर्जरी में मिलेगी. हर्पीज सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस में भी ये क्लूवर बेसी सिंड्रोम मिलता है. स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज की वजह से भी हो सकता है. इसकी एक इजी मेमोरी ट्रिक ये है कि जब भी अमिगडाला डिस्ट्रॉय होगा कि नो फिल्टर होएगा, नो फेयर होएगा, ना डर लगेगा ना कोई फिल्टर रहेगा. ठीक है. Moving on, we go on to the entorhinal complex. You also see something called the entorhinal complex. Students often memorize this without understanding it. The entorhinal cortex is essentially the gateway into the hippocampus. तो ये hippocampus है, इसके अंदर जो gateway है उसको हम entorhinal cortex कहते हैं. Almost all the information that is going to be stored as memory here passes through the entorhinal cortex before it reaches the hippocampus. Think of the hippocampus as a university and the entorhinal cortex as the main entrance gate. Information has to pass through the gate before entering the university. तो वो जो information pass करने का gate है ना hippocampus में, उसको हम बोलते हैं entorhinal complex या cortex. अब हमारे पास mammillary bodies हैं. ये दो छोटे छोटे rounded structures होते हैं, ठीक है, and they're located on the underside of the brain near the hippocampus. तो ये आपको नजर आ रही है, ये mammillary bodies हैं, ये दो होती हैं, ठीक है. मेमोरी बॉडीज का काम क्या होता है? दे आर पार्ट ऑफ द मेमोरी सर्किट. एक पैपेज सर्किट भी होता है हमारा, मेमोरी सर्किट ही होता है वो, हिप्पोकैम्पस और थैलेमस के बीच में रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है. तो उस मेमोरी सर्किट या पैपेज सर्किट में इसका एक बहुत मेजर रोल होता है मेमोरी प्रोसेसिंग में. So these two rounded smaller structures on the underside of the brain near the hypothalamus and the hippocampus is basically the mammary body. इसका नेम mammary इसलिए है क्योंकि they resemble breast like, because they resemble tiny breasts, इसलिए इसको mammary कहते हैं. The major role is basically मैंने बताया memory processing. They act as relay stations between the hippocampus and thalamus in a memory circuit, और इस memory circuit को हम Papez circuit कहते हैं. Their major role is memory processing. कभी कभी इनका जो डैमेज होता है उसको हम कब देखते हैं वर्निकी कॉर्सकोव सिंड्रोम में. ये अल्कोहलिक्स में भी होता है. दिस इज यूजुअली ड्यू टू थायमीन डेफिशिएंसी. अल्कोहलिज्म में आप देखते हो, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी वजह से सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है. Okay, so why does thiamine deficiency affect the brain? Thiamine is a cofactor for several enzymes that are involved in glucose metabolism. Thiamine dependent enzyme होते हैं आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट, ट्रांसकीटोलेज. ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये thiamine डिपेंडेंट है. I'll write it here. तो होता क्या है कि thiamine डिपेंडेंट एंजाइम्स के बगैर ब्रेन सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस एटीपी. वो एटीपी नहीं बना सकते एंड एरियाज विद हाई मेटाबॉलिक डिमांड बिकम डैमेज्ड. ठीक है. और पर्टिकुलरली क्या अफेक्ट होता है? मैमिलरी बॉडीज अफेक्ट होती हैं, मीडियल थैलेमस, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर, वो जो हमारी एक्वेडक्ट ऑफ सिलियस था उसके इर्द गिर्द जो ग्रे मैटर था वो भी इफेक्ट होता है, और दोनों सेरेब्रम्स के बीच में जो वर्नस था वो भी इफेक्ट होता है. तो वर्निकी एंसेफेलोपैथी में क्या होता है? ये chronic alcohol use disorder होता है. It can also occur in malnutrition, prolonged vomiting, pediatric surgery या फिर severe eating disorders. इसमें आपको क्लासिक ट्रायड मिलता है कंफ्यूजन का. पेशेंट डिसोरिएंटेड होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया मिलता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की वीकनेस होती है, और निस्टैगमस मिलता है आपको. एटैक्सिया भी मिलता है जिसमें वाइड बेस्ड अनस्टेडी गेट होता है, पेशेंट बहुत मुश्किलों से चलता है. So whenever you get an alcoholic patient with confusion, ataxia and nystagmus, think Wernicke एंसेफेलोपैथी. ठीक हो गया. नाउ हम चलते हैं सिंगुलेट गाइरस पे. सिंगुलेट गाइरस जो है इस पिक्चर पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द सिंगुलेट गाइरस है. दिस सिट्स अबव द कॉर्पस कैलोसम. यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम है और इसके बिल्कुल अबव आपके पास ये सिंगुलेट गाइरस है. ठीक है. सिंगुलेट गाइरस जो है सिट्स अबव द कॉर्पस कैलोसम एंड इट हेल्प्स कनेक्ट द इमोशंस टू बिहेवियर. For example, feeling sadness in one thing is one thing, but deciding to cry, deciding to withdraw or seek comfort involves processing those emotions through networks that include the cingulate gyrus. तो cingulate gyrus feelings को लेके behavior में translate कराता है.
It helps to process the feelings. Together, these structures allow us to remember experiences, attach emotions to them, and modify our behavior accordingly. ठीक है? So cingulate gyrus is the emotional processing, motivation, and attention part. That's why the limbic system is often summarized using the famous five Fs, which is feeding, fleeing, fighting, feeling, and sex.